This is a very pertinent topic that you've selected. But you see, this has to be looked into its constitutional perspective, then its legal perspective, which is obviously sub category of that constitution, and thirdly and most importantly, its social aspect. We live in a country where bonded labor may be a very pertinent issue for people living in the cities, in the rural areas. But then there are people who are very satisfied with working that way, in spite of the fact that it is an illegal thing. And it is still happening. I mean, we may have Supreme Court judgments or the constitutional provisions dealing with them, but it's still happening in the rural areas of Pakistan. But as far as the urban areas are concerned, the big cities are concerned, of course, there is a slight, I would say, check on that. Now, the law itself, or the evolution of that law itself, was, I think, done in the best possible manner. As you're all aware, just to give you all an update, in 1990, this case was taken up as a suo motu case, and very famous judgment, the Shukasi judgment, was passed, and directions were passed to federal legislature to legislate on that, and then the Abolition Act of 1992 was passed. So gradually, Pakistan was moving towards that, I would say, area where they were limiting the very possibilities of any such thing from happening. Then I was part of the proceedings in 2019, because bonded labor is not the only form of labor that is a problematic situation in Pakistan. And to an extent, that has been dealt with largely by a lot of judgments. And off late, one of the most recent judgments by Justice Tariq Salim Sheikh, where he has discussed the whole issue in detail, and he has mentioned Pakistan's efforts. He's referred to the international commitments, and apart from that, he's also dealt with how this is also not on as far as the Islamic provisions are concerned. Because you see, one way or the other, we accept it or not, but Pakistan is a country which is governed primarily by the Islamic provisions. And under the Article 227, all laws have to conform to the basic spirit of Islam. So wherever you pass a judgment, wherever you see anything of that sort, it has to be seen on the touchstone of the Islamic provisions. So it was also discussed in that context. So now we finally have that law. You see, the issue is that majority of the cases in the bonded labor issues, mainly, people don't even resort to that law. What happens essentially is, I'll give you a practical example. If somebody is tied up in bonded labor, he or she will simply get up, file a writ petition before the Honorable Lahore High Court, and you will see some lawyer appearing, and they'll say, that's fine, sulah ho gayi, dosti ho gayi, that's fine, that's it. And then it goes down the drain. So the problem does not only lie with the legislature or the law or the courts, it also lies mainly with the people who have to set the law into motion. It's just merely saying that I have a problem, but I don't want to file a case, yet government should deliver, yet the legislation should deliver. So majority of the cases that I've dealt with as far as bonded labor is concerned. As far as the enforcement of that statute is concerned, which was the second part of your question, I believe a lot of awareness needs to be created. It is something similar to the harassment laws. It is something similar to news laws, which are gradually evolving, such as PECA, Prevention of Electronic Crimes Act. So it's a special legislation which needs to be advertised first. People, if you expect कि एक भट्टे वाले को इस कानून का पता होगा, तो एक तो वकील को भी नहीं पता होता at times. So you need to first of all create this awareness, and this must reach the people, the very people who are supposed to use it. So that I don't see that happening. But then there are officers such as one of the panelists, we have Hamza Shafqat. They are very, very active. You see on social media, they're very active on media. So people get to know about their rights, the law itself. So I see the main reason for its non-implementation, if I were to put it in 2 lines, is people hardly know about the law. And secondly, people hardly report it under the relevant law. So the answer for them lies in filing a petition before the Honorable High Court. Okay, thank you. So you've kind of answered my second question in your first question, but I'll come to Gaurav now. So you're a social activist, and you've worked with victims of bonded labor before. So what do you think, from filing an FIR to taking the case before the courts, what hurdles would you face, and what hurdles would the bonded laborers themselves face in reaching out to you, apart from the awareness issue?
are there, do the employers basically have like a mafia-like control? With Thank you for your question. First of all, just to contextualize my involvement or experience with bonded labor, bonded labor is a very broad term, and many types of labor can be, termed to be illegal and classified within this domain. Mera jahan tak taluk hai, I run a youth platform where many people like yourselves or people who are tuning in come in to exert their energies towards any positive goal in society. And a few years ago, Ghulam Fatma, who runs the Bonded Labor Liberation Front, unki bahut sari jo efforts thi kai decades ki, that was highlighted by global media, and a lot of young people gravitated towards this cause. तो मेरा जहाँ तक इसमें involvement रही है वो उन volunteers के साथ और BLLF के जो activities हैं उनके साथ रही, who focus primarily on the brick-kiln workers, right? So that is, I feel, a very extreme situation, but extreme situations are often useful when highlighting the very extreme ways that such situations can be abused. अब वहाँ पे पूरी families काम करती हैं, from several generations of one particular family can be working there, starting with one individual who was either sold or found themselves through debts in a bonded labor type situation. The kind of debt contract that they engage in. So, for example, अगर उन्होंने किसी situation में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख debt लिया हो और उसके जगह उन्होंने अपनी labor को वहाँ पे as a bonded laborer pledge किया हो, so it's not that any of their efforts are ever going to be remunerated to the point where that loan is ever paid off, right? उनकी जो interest rates, अगर इस तरह का term हम use भी कर सकें, ऐसी होती हैं या उनकी situations ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती वो criteria, right? So if you are able to earn 13,000 rupees a month, you will probably end up being even more in debt at the end of the month than when you started. So these contracts are not made for it to be possible for individuals to work themselves out of such a contract. They are akin to slavery. And obviously, when you are in such a situation where the power dynamic is so tilted in favor of your quote unquote employer, I'm using these types of phrases because it is, difficult for us as an audience to think of labor, employer, wages, interest rate as terms that are applicable in such an extreme scenario. Lekin these are the language that we have to talk about these situations in. तो आपका जो employer है वो आपको essentially own कर रहा है उस point के ऊपर, वो आपके बच्चों को भी own कर रहा है, वो आपकी entire family को own कर रहा है, वहाँ पे आपकी कोई hope नहीं है to get out of that situation. And obviously with that amount of power comes great physical violence, the threat of physical violence, there's sexual abuse, there is wanton exploitation of that individual and that entire family. Now, if any one particular family member, and these are cases that have been relayed to us by Ghulam Fatma and various members of our organization, if one of those individuals contacts, for example, the bonded labor liberation movement and tries to escape, तो वो सिर्फ अपनी escape की बात कर रहा होता है, हालांकि उसके multiple family members उस situation में फंसे हुए होते हैं. When they do escape, they're not going to have any resources to support themselves. They don't have any place to go. They don't have any way to eat, right? And so, for example, even if they do manage to escape, it's very possible that they have to go back because they actually have no way to support themselves. It's very possible that the people who are their quote-unquote employers threaten them in terms of harming their children or their family members who are still with them. और बहुत केसेस में ऐसे हुआ है कि 3-4 लोग गए हैं, उनको फिर बाद में खबर मिली कि उनके कुछ रिश्तेदारों को मार दिया गया, तो they have to return back, वरना उनकी पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दिया जाता. And obviously, if the employers are able to identify where this individual is staying once they have left, तो उनके लिए वो फिर एक example set करने के लिए उनका फिर बहुत they do something very graphic and very violent towards that individual, so that the entire other bonded laborers know that running away is not an option. And obviously this cannot happen, such excesses can never happen if the other local authorities are not either in cahoots with them or do not have an incentive to turn the other way from such acts of violence, because सबको obviously पता होता है on the ground कि क्या situation चल रही है और इन लोगों की क्या हालत है. So ये हमारा lived experience है जो हमें मुख्तलिफ stories हमें पता चली from volunteers who work at this organization, from people who have been working with bonded labor for a long period of time. And so, yeah, you can say that they're akin to a mafia.
But there are many types of mafias, and this particular thing seems to be a very, very extreme form of human exploitation exhibited in this type of bonded labor situation. All right. So the next question is from our government official. तो जैसे कि हमारे मौजूदा पैनलिस्ट ने ऑलरेडी बात की कि अक्सर व बेशतर एक लॉ मौजूद होता है, बट उसकी अवेयरनेस जो बंदा जो विक्टिम होता है उसको भी नहीं होती, और अक्सर व बेशतर एक अच्छे लेवल ऑफिशियल लेवल पर तक भी उसकी अवेयरनेस नहीं होती। तो और हमारे ऊपर और भी बात हुई कि अक्सर व बेशतर ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इज साइंड बिटवीन द लेबर एंड द अथॉरिटी, उसकी feasibility इतनी डिफिकल्ट, उस implementation and getting out of that is so hard कि even if they work for their entire lives it's really hard to get out of that. तो एक individual level पे उसकी feasibility तो compromise हो जाती है, but we wish you to shed some light upon the feasibility on a more administrative level. अगर कोई बंदा आपके ऊपर केस लेकर आता है, आगे आपका केस आता है, तो लीग और किस तरह के मसले बढ़ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. First of all, I would like to thank the LUMS administration to invite me on this topic. And I feel really honored to be in the presence of Barrister Ahmed and all the other esteemed speakers who are here. Just by listening to them, I'm learning a lot of new things, and I think it's a great session. जो भी इसको सुनेगा उसको काफी फायदा होगा। अब जो आपका सवाल है मेरे से, बल्कि मेरे से क्या, ये तमाम सिविल सर्वेंट से हर रोज यही सवाल होता है कि सर ये लॉ मौजूद है, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे। और ये हर चीज में सवाल है, चाहे आप वेगरेंसी एक्ट उठा के देख लें कि सर ये बैगरी के ऊपर कानून मौजूद है फिर भी आपको बैगर्स नजर आ रहे हैं। आप एंटी इंक्रोचमेंट ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, आपको नजर आएगा सर ये लॉ मौजूद है तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहे। और सिमिलरली जो बॉन्डेड लेबर का जो कानून मौजूद है ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा। ऑल्दो हमने इस्लामाबाद में तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट एंड नरेट स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद, आपको ताकि एक पर्सपेक्टिव भी मिले कि क्या हो रहा था और क्यों नहीं हो रहा था। और मेरे से पहले जो दोनों स्पीकर्स हैं उनकी बात, उनके एनालिसिस से मैं इतना ज्यादा एग्री करता हूँ, और वो हमारी जो स्टोरी है इस्लामाबाद की, हाउ वी वर एबल टू एलिमिनेट बॉन्डेड लेबर इन इस्लामाबाद, वो एग्जैक्टली वही है जो दोनों स्पीकर्स ने जो एनालिसिस किया। कैसे? इस्लामाबाद में दिसंबर 2020 को मैं अपने घर में था और मुझे कॉल आई कि रजिस्ट्रार ऑफिस से कि आप सर सीधा चीफ जस्टिस साहब आपको बुला रहे हैं, आप फौरी वहां पे पहुंचे। अब जब कोई सिविल सर्वेंट है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉल आए तो वो आप पहले परेशान हो जाते हैं कि यार लगता है आज मैं फारिग हो जाऊंगा, मुझे कोई पेनल्टी पड़ देगी, मुझे हटा दिया जाएगा, कोई जरूरी सीरियस केस होगा कि ना नोटिस आया, ना समन आया, ना केस की हिस्ट्री पता है और मुझे बुला लिया गया। मैं सुबह उठता हूँ और कोर्ट की तरफ मैं रश करता हूँ, और रास्ते में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारे जो भी सरकारी वकील होते हैं, मैंने उनको कॉल किया कि सर मसला क्या है। उन्होंने कहा कि सर सरगोदा की एक खातून है मंजूरा बीबी, उसने एक हेबियस कॉर्पस की रिट की है, उसने कहा है कि मेरे बच्चे गायब हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे, और ना डीसी ऑफिस कुछ कर रहा है और ना पुलिस कुछ कर रही है। तो मैंने कहा यार जब इसने रिट की तो ये तो पुलिस को गया होगा, पुलिस ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा सर पुलिस वालों ने जवाब दिया कि ये खातून झूठ बोल रही है, और जो ईंटों के भट्टों पे ऐसा कोई नहीं है, ये खातून झूठ बोल रही है, इसने कोई पैसे देने हैं किसी ईंटों वाले भट्टे वाले पे, अब ये उनको ब्लैकमेल कर रही है। अब आप ये देखें क्या लॉ है और क्या स्टोरी है। मैं जब चीफ जस्टिस के पास पहुंचा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हो रहा है? मैंने कहा सर मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे नहीं बताया गया इस केस का, लेकिन मैं आपसे टाइम चाहता हूं कि आप मुझे कपल ऑफ आवर्स दें और मैं आई विल गेट बैक विद रिपोर्ट। वो कोर्ट वाज ग्रेशियस इनफ, दे ट्रस्टेड मी, और उन्होंने कहा ठीक है जी आप हमें रिपोर्ट जमा कराएं और बताएं कि मंजूरा बीबी के बच्चे कहाँ पे हैं। मैं कोर्ट से बाहर निकलता हूं और मैं मंजूरा बीबी और उनके वकील के पास जाता हूं, मैं कहता हूं जी क्या वाक़या है? उन्होंने कहा कि सर ये हमारे बच्चे जो हैं फलां ईंटों के भट्टे में मौजूद हैं और ये एसएचओ मिला हुआ है, और जब ये वहां पर गया है इसने कोई रिपोर्ट बना के हमारे खिलाफ रिपोर्ट दे दी और हम मजबूर हैं। तो उसी टाइम पे मैंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई और मैंने कहा कि इस्लामाबाद के ये कोर्ट के अहाते में ये जो ओनर्स ऑफ भट्टाज हैं, कोई गोंदल साहब थे, मैंने कहा इनको फौरी तौर पर यहीं पर अरेस्ट कर लें और इनको अरेस्ट करके थाने शिफ्ट कर लें। वो गोंदल साहब भी थे, उनके साथ 2 ईंटों के भट्टे में जो उनके शरीक थे, इस्लामाबाद के अंदर टोटल 63 ईंटों के भट्टे जो हैं वो चल रहे हैं, तो उनके साथ ईंटों के भट्टों की एसोसिएशन का जो हेड था वो भी वहां पे आया हुआ था। उन सबको हमने थाने शिफ्ट कर दिया और थाने में हमने उनको कहा कि जी आप अगर इस खातून के बच्चे आप बाजियाब कराएं वरना हम आपके खिलाफ पर्चा देंगे कि आपने इनको छुपाया हुआ। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल टेक्निक थी और हम आउट ऑफ लॉ ये काम कर रहे थे, इस तरह किसी को बिठा के कॉन्स्टिट्यूशन
की वायलेशन तो हो रही थी, लेकिन अगर ये हम ना करते तो हमारा मसला हल ना होता। और आप हैरान होंगे कि उनको गिरफ्तार करने के बाद, मंजूरा बीबी का केस है, रिपोर्टेड केस है ये, बाद में कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी, इसमें बड़ी डिटेल जजमेंट आई। उन बंदों को वहां पे बिठाने के 2.5 घंटे के अंदर अंदर हमें उस औरत का बेटा भी मिल गया, उस औरत के बेटे की बीवी भी मिल गई, और उसके 4 बच्चे भी रिकवर हो गए, और उसी पुलिस वाले ने वो रिकवर भी करा के दिए। और हम 2 घंटे बाद कोर्ट में आए और हमने प्रेजेंट किया कि सर हमने बच्चे रिकवर करा लिए हैं, और ये ईंटों के भट्टे वाले के पास था, इस पर हम पर्चा भी दे रहे हैं। और बॉन्डेड लेबर को जो कानून था, आप कह रहे हैं, जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि उसकी अवेयरनेस नहीं है, 100%। मैं मुझे खुद अवेयरनेस नहीं थी, और मुझे बाद में पता चला कि अंडर द लॉ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है, और एक डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर बनी हुई है जिसने काम करना था, और उसकी हमें अवेयरनेस नहीं थी। और कोर्ट में इस केस की वजह से कोर्ट के अंदर फिर जाके हमने सबमिट किया, और हमने उन बच्चों की जान भी बचाई, उनको उस सिस्टम से जान छुड़ाई, और उस पर पर्चा भी दिया। और उसके बाद तमाम इस्लामाबाद के ईंटों के भट्टों को हमने फिल फोर्स सील कर दिया। सील करने के बाद कोर्ट ने हमें कहा कि हम एक कमीशन बनाते हैं, उस कमीशन में ह्यूमन राइट्स के बंदे भी होंगे, यूएन के बंदे भी होंगे, उसमें प्रेस क्लब के बंदे भी होंगे, और एक बड़ी एस्टीम्ड लॉयर्स की एक कमेटी जो है वो हमें असिस्ट करने के लिए उन्होंने बना के दी। उसमें बैरिस्टर उमर गिलानी है, अदनान धावा साहब है, बड़े फेमस इस्लामाबाद के लॉयर्स हैं। उनको हमारे साथ कहा कि आप जाएं और तमाम भट्टों का आप सर्वे करें, और आप देखें कि ये लॉ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। यही आपका सवाल है, और इस सवाल का पहला जवाब तो मैंने आपको ये दे दिया कि इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। लॉ, जो लॉ नाफिज करने वाले इदारे हैं, ना उनको पता था, और जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं ईंटों के भट्टे, ना उनको इसके बारे में पता था, और जो गरीब इस्तेहसाल का शिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, जैसे मंजूरा बीबी थी, उसको खुद भी नहीं पता था। उस कमीशन ने फिर इस्लामाबाद के अंदर काम करना शुरू किया, और हमें पता चला, हिस्ट्री से पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मशहूर केस है, जो हमारे बाकी गेस्ट स्पीकर्स हैं उस पर बताएंगे, दर्शन मसीह केस है, 1989 का बड़ा मशहूर केस है, जिसके अंदर ये केस चला कि ये क्या होता है, ये बॉन्डेड लेबर काम कैसे कर रही है, और ये क्या इनका निजाम है। और हमने भी वही चीज जाके देखी कि अब हमें जो 63 ईंटों के भट्टे हैं, 63 ईंटों के भट्टे में हर ईंटों के भट्टे के अंदर जो फैमिली काम कर रही थी, और जो फैमिली काम करती है ना, उसको पथेरास कहते हैं, पठेरा कहते हैं। जो पूरा ईंटों का, जो पूरा भट्टे का निजाम होता है ना, उसके अंदर एक मुंशी होता है, एक ओनर होता है, एक उसके अंदर जमादार होता है, एक उसके अंदर जलाई होता है, एक अंदर उसके अंदर, इसमें एक पूरी हायरार्की है, पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है। एक का काम लेबर प्रोवाइड करना है, एक का काम एंट्री कराना है, एक जो है वो स्किल्ड लेबर है, एक सेमी स्किल्ड लेबर है, पूरा एक उनका एक निजाम था। आप हैरान होंगे कि हमने 63 के 63 ईंटों के भट्टों से जब इंटरव्यू किया, उनमें से एक ने भी कहा कि हम बॉन्डेड लेबर का शिकार नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हम बड़े खुश हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। और ये जो मंजूरा बीबी है, ये यही करती है, ये हर जगह से पैसे ले लेती है, और ये उसके बाद ये केस करती है, इसको पता है। तो अब हमें उस सारे सिस्टम का जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया, तो पहली चीज जो हमारी नॉलेज में आई, और वो जिसकी वजह से हम इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, वो है सिस्टम ऑफ पेशगी। पेशगी का क्या मतलब होता है? ये पेशगी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप अपने गरीब जो बेचारा काम वाला है, उसको आप ₹1,00,000 एडवांस में देते हैं, और उससे लिखवा लेते हैं कि मैंने इतनी ईंटें बनानी है। एक ईंटों का भट्टा दिन में 10,000 भी बनाता है, 20,000 भी बनाता है, 30,000 भी बनाता है। वो बताते हैं कि जी आपने इतनी ईंटें बना के देनी, नहीं बना के देंगे तो आपका बच्चा बना के देगा। जब तक ये ईंटों का भट्टा नहीं चलेगा, वो आपके बच्चे बनाते रहेंगे, और अगर आपने इसमें मजीद पेशगी ली तो आप मजीद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंस जाएंगे। अब जो मेरा एनालिसिस था इस सारी सिचुएशन का, वो ये था कि ये जो पेशगी है ना, ये इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ विशियस डेट, जिसके अंदर से, जैसे हमारे दूसरे स्पीकर ने कहा, कि इसके अंदर से कोई फैमिली निकल ही नहीं सकती। ना उनको पढ़ना आता है, उनको तो सिर्फ एडवांस में जब ₹1,00,000 मिलता है, वो ₹1,00,000 में याशी करते हैं। याशी बेचारों ने क्या करनी होती है, एक दिन अच्छा खाना खाएंगे, एक दिन कोई अच्छे कपड़े पहन लेंगे, एक दिन किसी उर्स पे चले जाएंगे, या कोई एंजॉय कर लेंगे। 10 दिन बाद वो पैसे उड़ा के वापस उस सिस्टम में फंस जाएंगे, और फैमिली दर फैमिली उस सिस्टम में हो। तो अब हमें पता चल गया कि यार, अगर हम दरखास्त के इंतजार में रहेंगे, जैसे कि पूरी सरकार चलती है कि जब तक दरखास्त नहीं आती, मुद्दई नहीं आता, तो स्टेट हरकत में नहीं आती। ये जो हमारा, आपको पता ही है कि एडवर्सोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, इसके अंदर इंक्विजिटोरियल उस तरह नहीं है कि हमारा एसी जो है रात को खुद खलीफा बन के निकल जाए, या पुलिस वाला और ढूंढे कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस भी नहीं है, होना चाहिए, प्रैक्टिस भी नहीं है। लॉ भी ऐसा है कि मुद्दई होना बड़ा जरूरी है। और जो ईंटों के भट्टे वाले होते हैं, वो कोई ना कोई भत्ता जो है वो अपने इलाके के अफसरान को देते रहते हैं। वो खुद भी जमींदार भी होते हैं, तो उनका एक ऐसा नेक्सस होता है कि उनके साथ कोई ना कोई पंगा करना मुनासिब नहीं हो रहा होता। तो हमने फिर जो पहली जो इस पे अटैक किया, वो इस पेशगी सिस्टम पे किया,
और हमने तमाम पेशगी के जितने कॉन्ट्रैक्ट से वो उठा के अपने कब्जे में ले लिए, और हमने कहा कि बेशक ये मुद्दई नहीं है, लेकिन जो ओनर है वो बॉन्डेड लेबर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ईंटों के भट्टे हमने बंद कर दिए। इस्लामाबाद के अंदर ये 63 ईंटों के भट्टे बंद करने के बाद हमने कोर्ट में अपनी वो पूरी एक रिपोर्ट दी, वो बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, वो आई वुड लाइक टू शेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। उसके अंदर हमने कुछ बताया कि सर ये काम हो सकता है प्रोवाइडेड कि ये हमारे लेबर डिपार्टमेंट में हर ईंटों के भट्टे वाला रजिस्टर कराए, हर जो एग्रीमेंट हो वो हमारे एसी के पास या किसी भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है जिसको हमने फिर बाद में नोटिफाई किया उसको जमा कराए, वो एवेल्युएट करे इस सिस्टम को जिसमें दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट हों। क्योंकि ईंटों के भट्टे वालों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑल्दो वो इस्तेसाल कर रहे हैं सब कुछ, ईंटों के भट्टे वाले कहते हैं कि सर अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का जो लॉ है उसमें तो सारी जिंदगी हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार तुम ₹1,00,000 के अंदर हमें इतनी ईंटें बना के दो, अगर वो ईंटें नहीं बना के देता तो फिर हम क्या करें, हम कैसे इसको इन्फोर्स कराएं? अगर हम अदालत में जाएंगे ₹1,00,000 के पीछे, तो अदालत में तो हमसे 3 लाख 4 लाख और वो 10 साल तक तो हम अदालतों में लड़ते रहेंगे, हमारा सिस्टम तो हल नहीं होगा। तो हमने कहा नहीं जी, आप इसको आप इस ईंटों की प्राइस जो है वो ये इनको आप ₹1,00,000 में नहीं करेंगे, आप दिहाड़ी की बेसिस पे आप इनको सेटलमेंट देंगे। उसके ऊपर उनका एक इंटरेस्टिंग वर्जन ये आया और ये बात उनकी सही थी कि सर हुकूमत जो है वो ईंटों का रेट सेट कर रही है, अगर आप ईंटों का रेट सेट कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि मैं अगर इस बंदे को ₹4 लाख दे रहा हूं ईंटों का, तो फिर तो मुझे एक ईंट जो है वो ₹10 की बजाय ₹18 पे बेचनी पड़ेगी, तो वो भी मुझे हुकूमत अलाउ नहीं कर रही। तो मैं तो खुद हुकूमत के इस कानून के इस्तेसाल का शिकार हूं कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं इतने में ईंटें बेचूं। अब अगर आप इस्लामाबाद में ईंटों के ऊपर ये एक्शन कर देंगे तो हमारे जो पिंडी वाले हैं पंजाब के अंदर तो ये सिस्टम चल रहा है, तो वहां पर ईंटें सस्ती बिकती रहेंगी, उनकी बिकती रहेंगी, और मेरा तो पूरा बिजनेस का लॉस हो जाएगा, मेरा बिजनेस तो मॉडल काम ही नहीं कर रहा। तो मतलब ये इसमें हमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और ये तमाम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये पॉइंट मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि इसमें अगर हम बार बार सिर्फ जो जिसका इस्तेसाल हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन अगर हम करते जाएंगे तो फिर जो बिजनेस वाला है वो बिजनेस नहीं कर सकेगा, या तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट का कोई ऐसा सिस्टम हो। बार कैफ ये तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है कि इस वजह से मैंने आपको बताया कि एक तो मुद्दई क्योंकि हमारे पास नहीं आते, अवेयरनेस ऑफ द लॉ नहीं थी, और तीसरा ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है विशियस डेट का कि इसको पकड़ने के लिए पूरी सेपरेट एक हायरार्की चाहिए जो डेली बेसिस पे यही मॉनिटर करती रहे। फिलहाल तो हमने वो इस्लामाबाद में फिर सेटल की, उनको बिठाया और चेक कर रहे हैं हमारे डेली बेसिस पे कोई इस्तेसाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर 63 में से हमारे 23 ईंटों के भट्टे बंद कर चुके हुए हैं और वो दे आर मूविंग आउट टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स क्योंकि इस्लामाबाद में सख्ती हो रही है। तो इसका जो परमानेंट हल है वो यही है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है अदालतों में उसकी बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। So, because अब वो अदालतों पे बात आ गई है तो फिर आपसे क्वेश्चन ये कि आपके ख्याल में हाउ वेल हैव द कोर्ट्स डेल्ट विद द इशू ऑफ बॉन्डेड लेबर। एक तो ये बात होगी कि ज़ाहिर है वो हेबियस कॉर्पस पिटिशंस की बुनियाद के ऊपर ही होता है, और ये दिस इज अ स्टैटिस्टिक दैट्स वेरी एस्टॉनिशिंग कि जो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट है उसके अंडर आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं हो सकी, इवन दो इट्स बीन promulgated, it was promulgated in 1992। तो मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि एम्प्लॉयर्स मैनेज टू एस्केप अकाउंटेबिलिटी समटाइम्स बिकॉज़ दे आर इन्फ्लुएंशियल? देखिए, we're all talking on the same lines, और आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमजा ने उर्दू में बात की हम भी उर्दू में करें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जिनके लिए ये बात हो रही है वो शायद उर्दू भी नहीं, उनको तो लोकल अपनी जुबान समझ आए। तो इम्पोर्टेंट बात है करने वाली, अदालतों का रोल बड़ा अच्छा रहा है, उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही है, वहां से बात आगे चलाते लॉ की। अब इस लॉ की भी सिचुएशन देख लेते हैं, जो हमारा 1992 का पैरेंसी कानून है जो कि दर्शन मसीह केस के बाद बना, उसके बाद ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, शरीयत कोर्ट में आई थिंक 2006 की जजमेंट है, और उसमें ये भी डिक्लेयर हो गया कि पेशगी सिस्टम भी गलत है और ये कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, देयरफॉर जो ये कानून है इसको चलना चाहिए। ये एक्चुअली ईंटों के भट्टों के मालिकान ने चैलेंज किया था इस्लामिक शरीयत कोर्ट में कि जी इसको खत्म करें। अच्छा, अब इस कानून के तहत अभी रिसेंटली जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट है, मैंने उसकी कॉपी इसलिए मंगवाई क्योंकि when you are citing a judgment or reading anything from that judgment, it should be absolutely clear। उस जजमेंट में हम आपको 92 के बाद 2020 की स्टोरी का बता रहा हूँ। उस जजमेंट में कुछ डायरेक्शंस दी गई और इस जजमेंट के अंदर चाइल्ड लेबर को देखा गया, बॉन्डेड लेबर को देखा गया। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ लेबर, ये तो एक सिचुएशन जिसमें हम बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी इसमें मौजूद है। अब मसलन सबसे पहली जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि सेक्रेटरी जो लेबर डिपार्टमेंट है वो तमाम भट्टा मालकान को, जो ईंटों के भट्टा मालकान हैं,
फैक्ट्रीज एक्ट 1934 1934 के कानून के तहत 6 महीने में रजिस्टर करेगा, यानी कि इट टुक देम 100 और ऑड इयर्स टू रियलाइज कि इनको रजिस्टर भी करना है। ये अदालत ने बताई बात। जहां हम अदालतों के साथ मतलब मेरा कोई इतना बहुत ज्यादा प्यार नहीं है अदालतों के साथ बहुत सारी बातों में जब इंटरफेयर करते हैं, लेकिन ये वो बात है जो अदालत ने खुद की और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने की। अच्छा, अगली बात बढ़ी है कि इन तमाम लोगों के मेजॉरिटी लोगों के आईडी कार्ड्स नहीं होते, CNICs नहीं होते, और आप उनको उठा के बैठा लेते हैं। जो मजारे का कॉन्सेप्ट है हमारी जमीनों पे, वो भी कोई खास डिफरेंट नहीं है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो आई कैन रिलेट टू दैट एंड सो कैन हमजा। गौर साहब भी इस पे बात कर सकते हैं कि वहां पर जो उनके साथ भी इतना उनका अच्छे हालात नहीं है, लेकिन हम उनको बिठा लेते हैं और वो लोग इसलिए सेटिस्फाइड होते हैं। दिस इज द अदर साइड कि पैसों में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं दाने पे रखा है, ये दाने देते हैं, खाना देते हैं, रिहाइश देते हैं, वो उसके ऊपर रहते हैं लोग। अच्छा, उनकी आईडीज चूंकि नहीं होती। फिर ये कहा गया कानून कि 14 साल से नीचे किसी बच्चे को आप वहां एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये सारी वो बातें हैं, अगर आप किसी बाहर के महजब माशरे को बताएं कि हम 2020 में कर रहे हैं, तो वो शायद गोरा वैसे ही फेंट हो जाए कि यार ये अगर हम इस अवाम को कानून होने के बावजूद 92 कितने साल हो गए, 20-30 साल हो गए। अच्छा, फिर आप उनके साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई जो भी हमजा ने की। फिर ये कि जो इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड हैं पंजाब, ये जो भट्टा मालकान का कानून है 2016 का, उसमें आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस बात को भी कम से कम 6-7 साल हो गए। मतलब ये जितनी तफसीलात लिखी गई हैं, या मैं जिस कानून के बनने में इन्वॉल्व था, विच इज पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 का, आई थिंक, आई बिलीव, उस कानून में भी जस्टिस जवाद हसन को एक कमेटी बना के ये चीज इंश्योर करानी पड़ी। लिटरली ये बातें बतानी पड़ी थी कि दीवार वाइट है, ये सीट नीली है, इसके मुताबिक की बातें जो बतानी पड़ी। सो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आके फिर गवर्नमेंट के लैप्सेस का भी पता लग जाता है। अब लेट्स से इस्लामाबाद इज लकी टू हैव एन ऑफिसर लाइक हमजा, एंड नॉट दैट आई नो हिम, मैं जनरली आपको ये बात कह रहा हूँ कि बट बहुत सारे ऐसे अफसरान होंगे who are not interested in this law, who are more interested in something else, and there will be officers जिन बेचारों के पास इस चीज का टाइम नहीं है, बिकॉज उन्होंने सारा दिन सियासतदानों के काम करने हैं, ये करना है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि राइटली सो। तो इस तरह के कवानीन जो है वो फिर इग्नोर हो जाते हैं। अदालतें कोशिश कर रही हैं, और अदालत की जो सबसे रिसेंट कोशिश, ये जजमेंट है जिसका मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ, ये मोहम्मद सुलेमान वर्सेस SHO, इसमें तारिक सलीम शेख साहब ने तमाम कानून डिस्कस करके, एंड मंजूरा बीबी केस उसकी भी हमजा ने बात की, वो भी ये मुतअद्दिद बार अदालतें होल्ड कर चुकी हैं, इनको रियलाइज करा चुकी हैं, बट उसके अंदर ऐसे ग्राउंड रियलिटीज मौजूद हैं जिनकी वजह से ये चीजें इन्फोर्स होने में प्रॉब्लम आती है। बॉन्डेड लेबर की हम जहां तक बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली कि वी टॉकिंग अबाउट बॉन्डेड लेबर, एंड दिस इशू हैज बीन फ्लोटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई बिलीव सो। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट, आई बिलीव अभी तक, चूंकि ये बात हम तो इस टॉपिक पे आज डिस्कशन कर रहे हैं, मगर मुझे याद है कि हम कई साल पहले भी जब अपनी हम किसी छोटी टॉक्स हो रही, तब भी ये इशू उतना ही प्रोमिनेंट था जितना आज प्रोमिनेंट है। जैसे आपने बात की कि किसी गोरे को बताया जाए कि 2020 में पाकिस्तान में इस तरह के लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो शायद वो खुद ही फेंट हो जाए कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो आई बिलीव जैसे अभी भी देखा जाए तो 2.1 मिलियन पीपल आर स्टिल अफेक्टेड बाय बॉन्डेड लेबर। तो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग दैट इज कॉजिंग सो मच डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज? या फिर लॉज आने में टाइम लग जाता है, या फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, या फिर उनके पीछे से वैलिडेशन में इतना टाइम लग जाता है? We live in a country which is excessively legislated. पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज पे कानून मौजूद है। इधर तक कानून मौजूद है कि गाड़ी के लेफ्ट पे अगर आप झंडा लगा के करेंगे तो 4.5 साल कैद है। मैं तो हमेशा पाकिस्तान से मेरा गिला ही है कि यहाँ पर हर चीज पे इतने कानून है, जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन, और हर चीज के लिए हमारे पास स्पेशल लेजिस्लेशन मौजूद है, which is also another thing which is very wrong. आपकी जनरल लेजिस्लेशंस मौजूद है, आप उस पर काम करें। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आता है कि हम कानून जो है फॉरन, जजेस भी, हम सबको, वकीलों को भी बड़ा शौक, इकट्ठे कुट्ठे हुए कमेटी बनाई, कानून बना दिया, उसके बाद उस कानून को भूल जाते हैं। आप अपने हुक्मरान जो है उनकी प्रायोरिटीज देखें, और मैं इस वक्त किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप पिछले 40 साल में उठा के देख लें किन कवानीन को बनाया गया और किन कवानीन को इम्प्लीमेंट किया गया। कवानीन सारे के सारे वो बनाए जाते हैं जो पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल गेन, या सिमेंटिक्स जिनकी अच्छी हो या जिनकी ऑप्टिक्स अच्छी हो। आपका लेट से मेट्रो बस प्रोजेक्ट बनेगा, उसके लिए कोई रेगुलेशंस आ जाएंगी। आपके मुल्क में एंटी करप्शन जो कि एक बड़ा मंजन बिकने वाला है, आप उसके ऊपर कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे, आप पैका में कर लेंगे कि जी इसके ऊपर इस वक्त हालात है। ये तो जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको तो मतलब माजरत के साथ, इनको तो आधे से ज्यादा जजेस भी सीरियसली नहीं लेते होंगे।
यार अब मतलब ये, हाँ जब कोई एक आधा भट्टा मालकान के हाथों एक आधा खुदा ना खास्ता बच्चा काम करते करते उसके साथ कोई ऐसी ज्यादती हो गई या उसकी खुदा ना खास्ता वफात हो गई, फिर आपको सारी हमारी सिविल राइट्स भी, हमारे वकला भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, जजेस भी सबसे आगे, ये कैसे हुआ, हमजा को बुला लेंगे, किसी और डीसीओ को बुला लेंगे, आप कहाँ पर थे, आपको नजर नहीं आता। तो बाबा आप आधे से ज्यादा अगर आप जाके, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, जजेस या किसी लोगों के घरों में चले जाए तो शायद आपको 14 साल से कम ही मध्य मिले काम करते हुए, उनका आप क्या करेंगे? उन पे जाके कौन रेड करेगा? उन पे मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि हमजा विल गो एंड से टू द चीफ जस्टिस कि सर आपके घर में एक बंदा इतने का काम कर रहा है, एंड आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबॉडी, हो सकता है एज वकील मेरे घर हो, एज ब्यूरोक्रेट्स मेरे घर हो, हम कवानीन को फॉलो ही करना नहीं चाहते, और इस तरह के कवानीन को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना चाहते। मैं जब हम थोड़ा सा कोट करूंगा, व्हेन वी वर मेकिंग दिस लॉ पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, तो मुझे मेरे क्लोज रिलेटिव्स ने फोन करके कहा यार ये क्या फजूल कानून आप बना रहे हैं, उन बच्चों को अगर आप घर में नहीं रखेंगे तो वो बाहर जाके डकैतियां चोरियां करेंगे, नॉट रियलाइजिंग के साथ साथ स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी भी है उनको एजुकेशन देना। लेकिन वो बात भी अपनी जगह किसी हद तक ठीक था कि एक एक घर में 8-8 9-9 बच्चे, उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं और उनकी रोजी रोटी चल रही है, जो पाकिस्तान की सबसे बुनियादी प्रॉब्लम है, जो हमेशा बीबी आसमा जहांगीर जिसके लिए कहती होती थी कि जिस मुल्क में ह्यूमन राइट्स तो बात की बात है, पहले इकोनॉमिक राइट्स तो है ही नहीं। तो इस किस्म के कवानीन जो है ना, दे आर गुड फॉर फंडिंग लेनी हो, पाकिस्तान के बाहर से किसी गोरे को बुला के दिखाना हो, इस तरह लम्स में बैठ के अच्छी बातें करके हम चले जाएंगे, आप देख लीजिएगा कि इसका क्या आउटपुट होगा, विच इज वेरी सैड। आप आज डिस्कशन रखे हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पे, आप देखिएगा रिजल्ट, आपके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आएंगे, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस आएंगे तो उसको डिस्कस करने, क्योंकि वो उनको सूट करता है। तो ये हमारी थोड़ी सी गवर्नमेंट के लेवल पर भी, तो हम सब के लेवल पर भी, जजेस के लेवल पर भी, आमतौर पे इन कवानीन को हम लिफ्ट नहीं कराते। जब आप लिफ्ट नहीं कराएंगे तो ऑफ कोर्स वो इस तरह ही एक आधी जजमेंट को 20-25 साल बाद आ जाएगी, वो भी पीएलडी में छपने के लिए। तो एक्टिविज्म पे जैसे बात कर रहे थे, तो गौहर आपने, हमने जब आपसे पहले भी एक दफ़ा ऐसी छोटी सी पैनल टॉक की थी, तभी आपने हमें ये कहा था कि यही जो बैरिस्टर अहमद ने भी जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया कि एक्टिविज्म में थोड़े से मसले होते हैं और एक्टिविज्म के अंदर गैप्स बहुत ज़्यादा है। तो आपके क्या ख्याल में, क्योंकि आप इस शोबे से वास्ता रखते हैं और आपके काफ़ी अर्से से आपने विद LSU के तौर पर आपने बहुत सारी स्टूडेंट्स को की ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से स्पेस दिया। आपको क्या लगता है कि अगर एक्टिविज्म भी मौजूद है, लोग चाहते भी हैं इस तरफ आना, फिर व्हाई आर वी फेलिंग? व्हाट डज दैट से अबाउट एक्टिविज्म इन पाकिस्तान? So I would just like to clarify to begin with that I'm not an activist, and I don't feel that activism itself is a term that properly captures the sheer breadth of work that is being done on any given issue. अगर देखा जाए तो हमजा साहब की जो अपनी contributions है, मैं उसको भी activism गिनता हूँ। उनको उन्होंने एक्टिव तरीके से एक गवर्नमेंट फंक्शनरी होने के नाते एक अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई, और इन्हीं के शूज में अगर लाख और गवर्नमेंट ऑफिसर होते तो शायद वो बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते टू दैट impetus that was provided to him by that habeas corpus petition. In fact, I would say that many of the magistrates in his shoes across Pakistan are probably very well aware of the tenets of this law, and are probably already figured out कि उन्होंने किस तरीके से इसको मैलिफाइड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है और स्टेट की आंखों में धूल झोंकनी है। तो इन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया वो भी एक एक्टिविज्म है, वो भी एक सर्विस टू द कंट्री है। ही इज नॉट जस्ट डूइंग हिज जॉब, ही इज डूइंग समथिंग बियॉन्ड हिज जॉब। जिस तरीके से पंसोटा साहब ने भी बात की है, this was actually a better answer to the question that you've asked me, because frankly it's not just bonded labor, it's not just issues that are picked up by activists when there is a groundswell of public support or eyes are on them, etc. It is something that shows the endemic nature in our society of accepting tyranny, accepting oppression, and being okay with the fact कि चलो आज हमने इस बच्चे को बचा लिया, ये जो भी मंसूरा बीवी थी, इनके 4 बच्चे हमने बचा लिए, तो ठीक है, रात को हम नींद सो सकते हैं। एक्चुअली हमारी 100% यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि अक्रॉस पाकिस्तान इस तरह के लाखों बच्चे होंगे जो नहीं बच पाए आज ही के दिन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ज्यादती भी होगी, बहुत सारे खानदान हैं जिनके साथ फिजिकल वायलेंस किया गया होगा, जिनको जबरदस्ती इसी नेक्सस का हिस्सा बनाया गया होगा, अनबिनोन्स टू देम, जिसका एक्सप्लॉइटेटिव फायदा उठाया गया होगा, राइट। और सिर्फ बॉन्डेड लेबर के केस में नहीं, तकरीबन हर पाकिस्तान के शोबे में ऐसी इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन राइफ है, and there is very little that we as a society do about it and care about it. So activism in itself is not
something that is going to solve quote unquote anything. It's just the thing that pricks the surface of the the vast ocean of injustice that happens when we can actually put our eyes on one particular instance and identify कि अच्छा ये एक ज़्यादती हुई है. Actually वो ज़्यादतियों की लहरें हैं नीचे जो चल रही हैं जो हमें नजर नहीं आती. और अगर हम इसको देखें पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है. 22 करोड़ अवाम पैदा तो एक गुनहगार नहीं होती. पैदा तो नहीं होती कि वो अपनी कोई ओहदा उठाएं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और फिर उसको मैलिफाइड इंटेंट के लिए इस्तेमाल करें, उस पावर का क्रिमिनल तरीकों से इस्तेमाल करें. They were brought there by the efforts of other people in that society, by the training that society gave them. They were turned into that criminal, that exploiter, that person who is enacting injustice wherever they go and using whatever power they have at their disposal. चाहे वो खुद क्यों ना मजारे हो, राइट, या बॉन्डेड लेबर हो, जब वो अपने घर में एंटर होते हैं तो वहां पे भी वो इंजस्टिस कर रहे होते हैं. एंड देन ऑल द वे जो बंदा शायद आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, बट जो बंदा प्रेसिडेंट हाउस में भी जब एंटर होता होगा वहां पे भी जो ज्यादती चल रही होगी. दिस इज ऑल एंडेमिक ऑफ द पीपल दैट वी आर एज अ नेशन, राइट. द फ्यू एक्सेप्शंस दैट पॉइंट आउट थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, उनको आप साइड पे करते हैं. एज अ नेशन वी आर ओके विद वायलेंस, वी आर ओके विद एक्सप्लॉयटेशन. और इस चीज को चेंज करने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए, बिल्कुल उनकी अपनी जगह है, जो इंडिविजुअल केसेस को उठाते हैं और उसको ऑल ऑफ अ सडन नेशनल स्पॉटलाइट पे लेके जाते हैं. और आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो दिन रात काम करें विदाउट दी एक्सपेक्टेशन कि उनकी कोई चीजें कोट एंड कोट वायरल होंगी या उनको मीडिया का कोई शौक नहीं है, और वो काम करें. वो बैरिस्टर अहमद के साथ भी मिल सकें, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज भी मौजूद होने चाहिए, उनके पास हमजा साहब के जैसे रिसोर्सेज भी मौजूद होने चाहिए, where they can see like-minded people who want to work to solve a particular problem and without the need for any pats on the back or any media spotlight, वो जाके वो काम भी करें. तो ये हम सब का काम है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Otherwise we're making the country a much more dangerous place for the people like you who are about to graduate and the people who come after you. एक क्विकली मैं सिर्फ इसमें ऐड करता हूँ, बड़ी अच्छी बात हो रही थी एक्टिविज्म. एक्टिविज्म पर लॉर्ड कानवर्थ है, यूके सुप्रीम कोर्ट जज, जिसने डाइसेंट किया था ऑन ब्रेक्सिट. So he was in Pakistan, so I got a chance to interview him. पहले तो इस बात पे भी वो बहुत होने वाला हो गया कि मेरा इंटरव्यू होगा. So he sent an email to England and said, "Can I give an interview to a law student?" मैंने कहा इंटरव्यू में मेरे से गलती से सवाल ये पूछा गया कि are the courts in England as active or do they actually believe in judicial activism? He literally, he was about to shoot me. He said, "What is judicial activism? You mean to say when a judge is active, is that what you're trying?" I said, "No. Let me refer you to the activism that happens in Pakistan, and judges are very forthcoming. They like to help, they like to enforce fundamental rights." He said, "No. A judge is supposed to be an active, and that's what all I can say about activism." So activism जो है ना जी, ये term over the period of time जो है बड़ी change होगी. मैं इससे ज़्यादा बात करूँगा तो हो सकता है कल Twitter और सारा कुछ भर जाए, तो इसलिए मैं इसको ये रोक दूँगा. एक्टिविज्म ये है कि अपने अपने टाइम, अपने अपने स्फीयर में, मैं, मेरा भाई हमजा, सब जो कर रहे हैं वो एक्टिविज्म. आप लोग जो कर रहे हैं, दिस इज एक्टिविज्म. अब जस्ट बिकॉज कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना के हैशटैग के साथ जब तक नहीं चलो वो एक्टिविज्म नहीं होगा, दैट्स नॉट एक्टिविज्म. और मे बी दैट्स आल्सो एक्टिविज्म. सो एक्टिविज्म इज कि आप अपने अपने टाइम काम को सही करें. ऑलराइट, तो जैसे कि हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन का क्रक्स मैं आपके सामने पेश कर दूं एक दफा फिर से. ये हमारे सारे लोग, जितने अफराद फंसते हैं बॉन्डेड लेबर के अंदर, उनको सिर्फ एक इंसेंटिव नजर आ रहा था, व्हिच इज रोटी, कपड़ा, मकान और हिफाजत. और शुरू में तो शायद उनको बहुत बेहतरीन लग रहा हो, मगर वो जानते नहीं हो किस दलदल में फंसे जाते हैं. एक दफा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंस जाए तो बिल्कुल एक दलदल की तरह जिसके अंदर धंसते से धंसते चले जाते हैं. और बेशक इससे निकलने के लिए हमें कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए जो कि डिफरेंट हायरार्कीज में इंप्लीमेंट हो सकते हैं. तो इसलिए सबसे पहले मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, सबसे पहले हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछना चाहेंगे इफ देयर इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. बिल्कुल. ये देखेंगे तो कोई ऐसी साइंस, आवाज आ रही, एम आई ऑडिबल? अच्छा, इसमें देखें सॉल्यूशन तो इसका बिल्कुल है, और सॉल्यूशन के लिए हमें कोई री इन्वेंट द व्हील तो नहीं करना. हमने यही देखना है कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं. सॉल्यूशन मैं बताता हूं, उससे पहले मैं फर्दर इंडोर्स करना चाहता हूं जो सर गोहर ने कहा है और बैरिस्टर साहब ने जो कहा है. बैरिस्टर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर लेजिस्लेशन है.
तो मैं भी इसको फर्दर आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर ईंटों के भट्टों के ऊपर जो कवानीन नाफिज होते हैं, मैंने उनकी लिस्ट अभी बैठे बैठे लिखी है। वो जो कवानीन है उनमें से कुछ तो ILO की कन्वेंशन हैं जो पाकिस्तान ने साइन की हुई है, ये पहला लॉ है। उसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है 1923 का, माइंस एक्ट है, चिल्ड्रंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट लायबिलिटी एक्ट है, मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि 17 से 18 कवानीन मौजूद हैं जिनके उन कवानीन के अंदर ये ईंटों के भट्टे आते हैं, और आपने इम्प्लीमेंटेशन देख ली है कि 2.1 मिलियन बच्चे अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब आपका जो सोल्यूशन है कि जी ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिशियंस ये डिसाइड कर लें कि ईंटों के भट्टे नहीं होंगे तो ये 1 मिनट में नहीं होंगे। अब उन्होंने क्या डिसाइड करना है, जैसे यूरोप में हुआ, यूरोप में उन्होंने कहा कि यार ईंटों के भट्टों को आप इंडस्ट्रियलाइज कर दें। जब ईंटों के भट्टों को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो शुरू में ईंटों की कीमत, जैसे पाकिस्तान में 12 रुपए है ईंट, तो शुरू में जो ईंट है वो 12 रुपए में नहीं बिकेगी, जारी बात है। वो अगर आप पूरी इंडस्ट्री लगाएंगे, बीच में फैक्ट्री लगाएंगे, इतना कुछ करेंगे, तो वो 12 रुपए की बजाय हो सकता है 20 से 28 रुपए की वो ईंट बिके। अब 20 से 28 रुपए की जब ईंट बिकेगी तो जो घर बनेगा, जो अभी 4 मरले का छोटा सा क्वार्टर भी बनाए जाएंगे, छोटा घर भी बनाए, तो 30 लाख में बनता है। अगर आप ईंटों की कीमत 12 रुपए से 28 रुपए करेंगे तो वो एक घर जो है वो 50 लाख से 60 लाख में बिकेगा जब बनेगा। तो जब घरों की कीमतें राइज होंगी तो लोग शोर मचाएंगे, लो जी ये हुकूमत कमी है, निकम्मी है। और हुकूमत फिर क्या कहेगी, वो इमीडिएटली कहेगी कि यार गोली मारें इंडस्ट्री को, आप ये जो सिस्टम चल रहा है इसी में चलाएं, वर्कर का इस्तेसाल होता है हो, लेबरर इसमें जो मर्जी करते करें, हमें ईंटें सस्ती चाहिए। जिस दिन पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल ये एस्टैब्लिश कर लेंगे कि नहीं यार हमें ईंटों को महंगा करना है, ह्यूमन राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तो आप देखेंगे कि जैसे यूरोप में हुआ उसको इंडस्ट्रियलाइज किया, वहां पे ईंट महंगी मिलती, दुबई में भी ईंटें महंगी मिलती हैं, तो पाकिस्तान में भी महंगी मिल जाए। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो हमने 100 लॉज बनाए हैं और सारा कुछ किया है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस पूरे सिस्टम से जान छुड़ा लेंगे। नंबर 1, ये तो मैं पहला सोल्यूशन दे रहा हूं। नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फॉर वन रीजन और दी अदर कहती है कि नहीं यार हमने इस पर सब्सिडी देनी है या हमने कुछ और काम करना है, हमने ऐसे ही चलाना है, तो दूसरा सिस्टम है कि पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है उसको इंप्रूव कर लिया जाए। यानी कि अगर ईंटों के भट्टे वाले को पता हो कि मैंने जो लाख रुपया दिया है, इसमें जो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 100 ईंटें, 1000 ईंटें, 500 ईंटें जितनी है बना लेगा, और अगर नहीं बनाएगा तो स्टेट फिर उसको इन्फोर्स कराएगी जैसे बाकी दुनिया में होती है, तो फिर भी इस बॉन्डेड लेबर के सारे निजाम को हम खत्म करके इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल, अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट भी नहीं हो सकती। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस है कि आप कोई भी मुआहदा कर लेते हैं, टेनेंट लैंडलॉर्ड से कर लेता है, कोई मुआहदा जमीन का हो जाता है, वो उसमें बस फंस जाता है इंसान। तीसरा तरीका यह है कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है, अब इस्लामाबाद का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं है, और 2 इंस्पेक्टर हैं। उन 2 इंस्पेक्टरों का काम है कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर 150 फैक्ट्रियां भी चेक करनी है, डोमेस्टिक लेबर के कवानीन भी चेक करने हैं, चाइल्ड लेबर को भी चेक करना है, और ये 63 ईंटों के भट्टे जिनके अंदर 1970 लोग काम कर रहे हैं उन्होंने उनको भी चेक करना है, तो इम्पॉसिबल है। तो तीसरा काम यह है कि हुकूमत अगर पहली 2 ऑप्शन नहीं कर सकती तो थर्ड ऑप्शन में जो लेबर डिपार्टमेंट्स हैं उनको एम्पावर करे, उनकी ब्यूरोक्रेसी को इंप्रूव करे, और उनकी फिर जिम्मेदारी लगा दे कि अगर इस लॉ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई बाय गिविंग देम इनफ रिसोर्सेज, हमारे लेबर डिपार्टमेंट के पास तो ना मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है, अब वो बस पे जाएगा, वो बस पे क्या जाके चेक करेगा, वो तो यही करेगा अगर उसने चेकिंग करनी है तो इंडस्ट्री वाले को कहता है कि यार अपनी गाड़ी भेजना, मैं जाके तुम्हारी गाड़ी में इंडस्ट्री का चेक करके अपना रजिस्टर भर दूंगा। तो इस तरह निजाम नहीं चल सकता, ये तो कोलैप्स की तरफ सारा निजाम जा रहा है। और जो सर गौहर ने बात की, आई मतलब सो एग्री टू इट कि ठीक है ये एक्टिविज्म है, लेकिन अब और कई लोग नहीं भी कर रहे, और उसकी वजह भी मैं बताना चाह रहा हूं कि वो एक्टिविज्म इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि वो उस निजाम में वो भी जकड़े हुए हैं कि जब गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक इंस्पेक्टर है जिसने 200 मशीनें चेक करनी है, 200 फैक्ट्रियां चेक करनी है, तो वो कैसे काम करेगा। तो जब तक हम उसको एम्पावर नहीं करेंगे विद इनफ रिसोर्सेज और फिर उसको कहें कि अब अगर बॉन्डेड लेबर हुई तो तुम्हारा गला कटेगा, फिर लॉ ये होना चाहिए कि फैक्ट्री ओनर नहीं, फिर उस इंस्पेक्टर का गला कटना चाहिए, ही शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। अब जब उसके खिलाफ प्रोसीड करते हैं, वो कहते हैं सर मुझे तो पेट्रोल ही नहीं दिया, मैं कहा। तो ये सिस्टम ऐसा बन गया है, यही थानों का सिस्टम है कि ना थाने वालों को गाड़ियां मिलती हैं, ना थाने वालों को कत्ल हो जाए तो नक्शा बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते, फोरेंसिक कराने के लिए 10,000 की फीस नहीं हुकूमत सरकार देती। तो ये ऐसा सिस्टम, ऐसे निजाम में हम जकड़ते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने मेरे से सोल्यूशंस मांगे तो मैंने आपके सामने ये 3 सोल्यूशंस रखे हैं
मे बी जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो उस पर कोई बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें. थैंक यू. आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए सॉल्यूशंस बिल्कुल, जो कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ तक इन्फोर्समेंट की बात है, दैट इज वन एस्पेक्ट. शुड वी स्टॉप नाउ? Yes, you may proceed. सो मैं ये बात कह रहा था, जिस तरह हमजा ने बड़े जबरदस्त, देखिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट सन, मैं आपको बात बता, वो आपको ये इन्हीं कागजों में से निकाल के बात बता देंगे, ये करें 10 इंस्पेक्टर लगेगा. कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो है, जिस तरह हमजा ने भी बात की, उसने आपको वो बात बताई जो प्रैक्टिकल बात. आप जितने मर्जी कानून बना ले, वो 13-14 कानून बना दिए, यही नहीं पता लगता पहले कि हम इस कानून में आते हैं कि इस कानून में आते हैं, किधर जाए, वकील को ही नहीं पता. तो सबसे पहले तो सबको यूनिफाई करें. अगर आपने लेजिस्लेशन करनी है, एक लेजिस्लेशन हो, जिस तरह अभी हमने एंटी रेप के ऊपर कानून बनाया है, मैं आई एम पार्ट ऑफ दैट कमिटी, एक कानून है, उसको हमने रिजॉल्व करना है. यूनिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन सारी इकट्ठी कर दें, ताकि किसी वकील को भी पता और जज को भी पता. दूसरी बात ये पॉलिटिकल विल जिसकी बात की है, पॉलिटिकल विल को मैं, चूंकि हमजा थोड़े से गार्डेड वर्ड्स में क्या, वैसे उसने बड़ा ओपन लिखा है, मैं उसको और कर देता हूँ कि अगर आप हुकूमत के पिछले 2 साल के ऑर्डिनेंसेस उठा लें, इमरजेंट सिचुएशन है ना जी, और पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस इमरजेंट सिचुएशन में ही आना चाहिए. तो इससे ज्यादा इमरजेंट क्या है, किसी गरीब का बच्चा जो है उसकी जान से ज्यादा इमरजेंट क्या होगी. तो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डिनेंस किन चीजों पे आए हैं. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और आएंगे अगले 1-2 दिनों में भी आएंगे, तो आपको उनसे प्रायोरिटीज पता लग जाएगी. एंड दिस डज नॉट गो फॉर दिस गवर्नमेंट. You take up the list of ordinances which have been passed in the last 20 years, you will find out what has been the priority of this government or any government. So उसमें भट्टा मालकान मेरा ख्याल है वो 400-500 सफे नंबर पे आता है, कोई बिल्कुल ही ऑर्डिनेंस लैप्स कर दें दोबारा. So that shows political will. Political will क्या है, सुबह इधर प्रेसिडेंट साहब सोचें इस तमाम कवानीन ड्राफ्ट, मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ, कर देते हैं, सुबह पास करें ऑर्डिनेंस, कोई उस ऑपोजिशन भी उसको अपोज नहीं करेगी. आप ऑर्डिनेंस भी वो पास करते हैं जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलती हैं और आपकी लोकल ऑपोजिशंस भी बोलती हैं. आगे आ जाते हैं जुडिशरी. जुडिशरी को ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि हर केस जो है वो अखबार के लिए नहीं है. कुछ केसेस इन भट्टा मालकान के खिलाफ भी डिसाइड करके तो लोगों को रिलीफ देना, जिस तरह की जिसने तारिक सलीम शेख साहब ने केस अभी डिसाइड किया है. मतलब ऑफ कोर्स मैं कंटेम्प्ट वाले जुमरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि गर्मी में जेल में जाना बड़ा मुश्किल होता है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कुछ जजेस को भी ये चीज गाइड करनी जरूरी है कि सर हर केस में 250 सफे जरूरी नहीं, 5-10 लफ्जों की बात है. साकिब निसार साहब के 100 इख्तलाफात, लोगों की एक बात उनकी बड़ी जबरदस्त होती थी, हमेशा हम उनके शागिर्द रहे हैं, वो कहते थे कि जो असल चीज है उस पर आप बात करते नहीं. अब 1930 1900 शुरू हो जाते हैं जी, ये दुनिया में लेबर पैदा कैसे हुई, क्या हुआ, स्लेवरी कहां से, दैट्स नॉट रेलेवेंट. व्हाट्स रेलेवेंट इज दैट वी गॉट एन एक्ट ऑफ 1992, Article 3 of the Constitution, Article 14 of the Constitution, 9, 15, 17, 18, which guarantee उसके fundamental rights, और उसको क्या कहते हैं कानून के हवाले करें. That's it. उसके अलावा जी मैं तो इवन इंटरनेशनल लॉज को भी मजाक समझता हूँ. आई नो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक, पर इंटरनेशनल लॉज का क्या फायदा. ये हमेशा जजमेंट्स में 10-15 सफे भरने के लिए होते हैं, या इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके टाई शाई लगा के आप बोल देते हैं कि बड़ी अच्छी कन्वेंशन, इनको तो लिफ्ट ही कोई नहीं कराता पाकिस्तान में. We are not even willing to ratify them, and we don't need these international conventions to tell us कि हमने क्या करना है. हमारे कानून में हर चीज मौजूद है, और हमारा कानून is guided by the Islamic principles, उसमें भी बड़ी तफसील से चीजें मौजूद हैं. So तीसरी बात वो यूनिफिकेशन के साथ लिंक है कि जुडिशरी जो है ना उसकी इन्फोर्समेंट है. और जो एक कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट की बात की थी, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी है, जिस तरह और अथॉरिटीज हैं जो 2-2, 3-3 दिन में फैसले करते हैं, आप एक स्पेशल उस नए लॉ के तहत ट्राइब्यूनल बना दें जिसका काम सिर्फ ये होगा, अगर भट्टा मालकान वहां जाते हैं 3 दिन में फैसला हो.
और आप अपने वापस आ जाएंगे, उससे लाख रुपया लेके देना है 2 लाख। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी आदमी को पैसे दे दें तो वो पैसे फिर आपके बच्चों के बच्चे ही आगे वो भी ले लें, या खुदा ना खास्ता कत्लो गारत आप इन्फोर्स कर दें। भट्टा मालकान की भी तो लेजिटिमेट बात है ना कि आपने उनके पैसे जो है वो इन्फोर्स करने हैं। हमारे कॉर्पोरेट रूल्स हैं, कंपनी सर्विसेज रूल्स हैं, उनको मैं आई कैन साइट 1000 रूल्स जिसमें अमीर आदमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो उसको ऐसे पैसे मिलते हैं, हाई कोर्ट भी उसको एंटरटेन करती है। तो प्रोक्योरमेंट मैटर्स होते हैं, डैम बन रहा है, 2 बिलियन की पेमेंट ऐसे होती है, लेकिन इस बेचारे की लाख रुपए की पेमेंट जो है ना उसके लिए लाख साल चाहिए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। सेमेंटिक्स में मत जाएं, ऑप्टिक्स में मत जाएं, एग्जिस्टिंग लॉज को यूनिफाई करके जस्ट रिजॉल्व करें। अपने लेबर मिनिस्टर को पूछें तीसरे दिन खान साहब बुला के क्यों नहीं हुआ भाई, वो आपको जवाब दें। इतनी सी बात है। Obviously, Barrister Ahmed और Hamza साहब ने जो बात की, it's reflective of their experiences and very, very practical suggestions. I would say that from my point of view, the way I diagnose this is something akin to what I said earlier, कि हमारी सोसाइटी में ये जो इस टाइप की injustice है और इस टाइप की जो lawlessness है और इस तरह का जो breakdown है of social order, वो इतना endemic हो चुका है कि जब आप root cause ढूंढने जाते हैं तो आपको all the way to the beginning जाना पड़ता है। कि even जो अहमद साहब ने बात की, जो हमजा साहब ने बात की, these are things where the baseline assumption was, as they both mentioned, political will. But you know, ये तो हमारी कुरान हदीस की भी बात है कि एक सोसाइटी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वही हैं जो वो सोसाइटी डिजर्व करती है। And if we want to blame our problems on our political leadership, we also need to blame ourselves and say that we deserve these type of people because we are these type of people, और हमें मौका मिलेगा हम भी वही चीज करेंगे। So then fundamentally we need to go back to the things that are broken in our society, the things that drive this loss of values that we see in every part of our life as Pakistanis and citizens. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो आपका ब्रेकडाउन है वो एक सोशल ब्रेकडाउन है, जहाँ पे हम जब एक क्वांट्री देखते हैं कि यार अब या तो ये इन मजदूरों की जानें हमारे लिए मैटर करती हैं, या हमारे जो मुल्क के गरीब हैं उनका घर मैटर करता है। You know, either you tell the Mazdoor's child you have no human rights, ठीक है, and we need to make houses, or you tell that family that has put together an entire lifetime's worth of saving is about to buy a house and say sorry आपको 20 साल और वेट करने पड़ेंगे, or you will tell your children कि जी the state bank or whoever is about to take a loan out, print more paper money and take a loan out on your lifetime, ठीक है, कि आपकी आने वाली नस्लों से आप पैसा लेते हो और फिर आप सब्सिडी देते हो आज के लोगों के लिए, ये आपकी क्वांटिटी, ठीक है। इस जैसे फंडामेंटल ब्रेकडाउन के अंदर फिर आपको फंडामेंटल जगह के ऊपर जाके अपनी सोसाइटी को और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपने काम करना है ये सोच के करना है कि जब तक सब नहीं करेंगे, जब तक मेजॉरिटी सोसाइटी अपने घरों से निकल के एक्चुअली कोई टाइम नहीं डिवोट करती टू जस्ट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन एक्टिव सिटीजन, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सिट हियर एंड से कोर्ट्स क्यों नहीं ये कर रही, पॉलिटिशियंस क्यों नहीं ये कर रहे, ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं हमारे ये क्यों नहीं ये कर रहे। ये आपको काम है और आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को शहरी समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, पाकिस्तानी समझते हैं, गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड डू समथिंग, ठीक है, फिगर आउट व्हाट इट इज दैट यू कैन डू। अगर आज आपकी उतनी पावर नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप भट्टा के मजदूरों वाले काम करें, there are 1001 other areas where society is broken. Start from there. Start from your own servant quarter, right? Start from the school in the slum that is literally 10 minutes away from your house. काम करना शुरू करें, ठीक है। Be the society that you want to be in the future. और वहाँ पे आप ये बॉन्ड्स जोड़ें, ये इनजस्टिसेस को एड्रेस करें। अगर आज इंस्पेक्टर का काम इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप करें, ठीक है। अगर आज स्टेट मशीनरी वहां जाके छापे नहीं मार सकती, आप 20 लोग इकट्ठे करें, आप करें, ठीक है। आप वो गैप्स फिल करें जो स्टेट नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि आपका घर है, आपकी नेशन है, आपकी कौम है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये कि इकोनॉमी, ठीक है, विदाउट देयर बीइंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, these मजदूर्स will always need that लाख रुपए from these sharks whenever उनकी फैमिली में कोई डेथ होती है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई अस्पताल का काम होता है, जब भी कोई परेशानी होगी, उनको पैसों की जरूरत होगी, पैसे उनके पास है नहीं, वो जाएंगे किधर, ठीक है। वो जाएंगे ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव लोगों के पास, या वो जाएंगे अपने पैटर्नल सपोर्ट के जरियों के पास, which could be the zamindar who they have been taking money from for generations and they have a nice relationship with them. They may not be able to be socially mobile,
बट दे हैव सम इक्वेशन व्हिच इज सेट फॉर देम। लेकिन अगर आप उनकी सोशल मोबिलिटी चाहते हैं, आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए अगर आपने ये भी सोचा ना, अपनी नीयत बना के कि मैंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसे इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे आमदनी क्रिएट की जा सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, और जब मैं कोई बिजनेस ओनर बनूंगा तो मैं वहाँ पे अपनी लेबर के साथ जो रिलेशंस रखूंगा, इट विल बी something to set the standard. It will be something equitable. It will be something fairer than what we have today. तो इन बातों की के लिए आप भी एक एजेंट ऑफ चेंज बनेंगे। और once again हमारे लोगों का काम है कि हम अपनी पावर में और अपनी कैपेसिटी में जो चीज़ है हम वो करें, ठीक है, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उनका स्केल इतना बड़ा है कि we can't solve them in a day, right? But if enough people come together and you set the example and more people follow you, तो इंशाल्लाह एक ऐसा दिन आ भी सकता है जब हम इस दलदल में से निकल भी सकते हैं। इसी बात पे मैं अपने कमेंट्स को ऐड करूंगा। So I think Sir Hamza has to leave, so we'll take your closing comments, sir. Sir, are we audible? जी, अब आपकी आवाज बीच में स्किप कर गई थी, दोबारा बताएं। Sir, we need your closing comments on the discussion which has happened up till now. थैंक यू वेरी मच। बहुत आई कम्प्लीटली एग्री। मेरे ख्याल से हम सारे पैनलिस्ट ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर रही है हमारी ओपिनियन। जैसे सर गौहर ने भी कहा है कि रियासत को भी अपनी प्रायोरिटीज रखनी है सामने। बैरिस्टर साहब ने भी यही कहा है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर शहरी की भी एक जिम्मेदारी है, हम सब की हम सब बतौर शहरी, जैसे सर ने बड़ी जबरदस्त बात की है, इट हैज मेड मी टू थिंक। जैसे सर ने कहा है कि अगर हमने चेंज करनी चीजें तो हम अपने सर्वेंट क्वार्टर से करें, हम अपनी शादियों से करें, जहां शादियों पे ड्राइवरों के लिए अलहदा खाना होता है, ड्राइवरों के लिए अलहदा प्लेट्स होती हैं और हमारे लिए अलहदा प्लेट्स होती हैं। हमारे घर के अंदर हमारे नौकरों के लिए, वो हमारे बेड पे नहीं बैठ सकते, हमारे सोफे पे नहीं बैठ सकते, वो नीचे बैठते हैं। तो ये जो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, एक सुपीरियॉरिटी का माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में, मेरे ख्याल से इस पे भी बात होनी चाहिए। जो इसका साइकोलॉजिकल रीजंस हैं ऑफ ये जो स्लेवरी है, या मे बी इसके रिलीजन में भी कोई रीजंस होंगी। ऑल्दो रिलीजन की जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप किसी मदरसे में चले जाएं, आप मस्जिद में चले जाएं, तो मस्जिद के अंदर तो मालिक और नौकर एक सफ में नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन घर के अंदर वो उनका रवैया फर्क हो जाता है। तो ये माशरे में भी ऐसी चीजें हैं। बाकी जो सोल्यूशंस हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम इस्लामाबाद के अंदर हम इस पे कैसे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि हम एग्रीमेंट्स को भी वेट कर रहे हैं। हमने नादरा को भी कहा है कि इन सबके CNICs बनाए, हमने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज भी बनाई हैं, डेली वेजेस की जो ऑर्डिनेंस है उसको भी इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तमाम जिलों की इंतजामिया इसके ऊपर थोड़ा एक्टिवली काम करे तो मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से। थैंक यू। Thank you so much, sir. आप लोगों के closing comments? बिल्कुल जी, मैं I'd like to reiterate what I've just said, and मेरी उसमें गुजारिश यही होगी कि जो 3-4 पॉइंट्स आपसे मेरी गुजारिश ये होगी कि चूंकि आपका रिकॉर्डेड सेशन है और इस पे बड़ी हमने डिस्कशन भी किया तीनों लोगों ने, तो उसकी एक जरूर मिनट्स जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा और इसकी का एक फॉर्म ऑफ रिपोर्ट जरूर बना लीजिएगा, व्हिच ऑफ कोर्स हम अपने थ्रू हमजा साहब के थ्रू और इनके कनेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचाएं। हो सकता है उसमें से कोई ऐसी बात है जो उनको पसंद आ जाए। एक तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा। दूसरा मैं कहूँगा इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आप लोगों का चूंकि ये I read in the email it's one of the pioneer projects, one of the debutants इस चीज में, तो this is a wonderful initiative and keep doing it। और जो बात उन्होंने की है, हमजा ने जिसको इंडोर्स किया, मैं तो 101% उसे करता हूँ। हमारे यहाँ हर आदमी अपने अपने तही ये ईंटों का जो मालकान है वो उसके किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्टेशन में। आज मैं भी जब घर में जाऊंगा तो मेरा मुलाजिम वो खाना नहीं खाएगा जो मैंने खाना। इसी तरह अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं उसको नौकर ही बोलूंगा, हालांकि कानून है कि आपने उसको डोमेस्टिक वर्कर बोलना है, वो वर्कर है। इसी तरह अगर मेरा ड्राइवर जो है वो किसी के घर के अंदर जाके खाना नहीं खाएगा, मैं ये इंश्योर नहीं करूंगा मैं घर के अंदर खाना खा रहा हूँ यार इसको भी खाना मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हमारा भी जो हाल है वो ईंटों के मालकान वाला जो बट्टों वाला है जिनसे हम एसोसिएट करते हैं, नॉट ऑल जो ज्यादती करते हैं। सो बिल्कुल देयर इज अ वेरी वेरी स्टार्टिंग नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, वी मस्ट डू इट और अपने अपने लेवल पर चीजें इंप्रूव करना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह सारे मामला जो है वैसे हो जाएंगे। और फाइनल पॉइंट अबाउट इस्लाम, इस्लाम की जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज थी अमंग्स्ट मैनी, उसमें ये थी कि इट हैड पुट एन एंड टू स्लेवरी। और जब भी कोई अच्छा कदम लिया जाता था तो कहा कहते थे एक स्लेव को आप रिहा करें। इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद जिन लोगों में थे हज़रत बिलाल की थी। और बड़ा खूबसूरत कलाम भी लिखा हुआ है, आई थिंक वो साबरी ब्रदर्स ने सुनाया हुआ भी है। तो बात ये है कि जो स्लेवरी और ये सारी चीजें तो हमारे रिलीजन में बैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड है, लोकल लेजिस्लेशन में बैंड है, हमें और आपको भी पता है। लेकिन इस हॉल से निकल के इन सम फॉर्म हम सब मास्टर्स हैं और हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में स्लेव्स हैं, जिसको अपने अपने लेवल्स पे एंड करेंगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। Yeah, I completely agree with what Batsman has said. Thank you to you guys for organizing this conference, the Policy Research Conference. I hope that this grows, this initiative grows in the future as well. I hope that we're able to do more than just discuss policy matters. I hope that you can also ask the LUMS community to join hands and actually take some definitive action. There are many opportunities that are right here in your vicinity to go out there and make your actions heard louder than the words that we've spoken as panelists today. अगर आपको उसमें कोई help चाहिए तो हम available हैं. But I think that I feel we should all start taking those small steps. Only then can we hope for the larger ones. Thank you. Questions? Right, so मैं पूछना चाहता हूँ तो हम लोगों ने कुछ महीने पहले भी आपसे डिस्कशन की थी, we talked about bonded labor and how we could solve the problem. But the problem that we're now facing is that we're not growing out of it. We're again talking about the same problems that we talked about in the previous panel discussion as well. So अब तो हम लोगों ने एक think tank बना दिया LUMS के अंदर. तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि हम लोग किस तरह से think tank को use करके आगे bonded labor के जो problem है उसमें अपना थोड़ा सा contribution दे सकें. Either it can be through advocacy or lobbying, whatever the approach that we take, we create an impact on this issue and we मजबूत तब्दीली लेके आ सकते हैं माशरे में इस इशू के हवाले से। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी जरा अगर आप इजाजत देंगे एक हल्की सी सख्त बात है जो मेरे को रिप्लाई करती है। आपकी जो लास्ट पैनल डिस्कशन हुई थी इसी इशू पर हुई थी, ठीक। अब आप उस पैनल डिस्कशन का लिटमस टेस्ट है जो आज की हमने इस डिस्कशन में एस्टैब्लिश किया है कि जी आपने अपने लेवल पर क्या किया। अगर तो इस ऑडिटोरियम से बाहर आपने कुछ किया है या मैंने कुछ करना है आज इस ऑडिटोरियम से बाहर जाके साल बाद इस पर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि इस पैनल डिस्कशन में जो लोग हम सब बैठेंगे और सिंसियर इस कॉज, वरना मकसद सिर्फ यही है कि जूम टॉक हो, 2-4 शेयर्स हो, मीडिया पे आए, प्रोपेगेंडा पे आए, उधर आए और कुछ हो, ठीक है। सो आप सिंपल टेस्ट का अप्लाई करें। आई एम श्योर गौहर तो चूंकि इसको खुद लीड कर रहे हैं, ये तो इस पे सच्चे हो जाएंगे वापस आके, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। मेरी ये होगा कि वो केस कर लूंगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इन टॉक्स में हम जाते हैं, बोलते हैं, आप लोग बात करते हैं। मैं बार बार बड़ी माजरत से कह रहा हूँ कि मैं किसी को पॉइंट्स नहीं मार रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली अभी हमने आज क्या करना निकल के कुछ नहीं करना। क्या मैं इस वक्त नेशनल असेंबली में जाकर इस इशू को रेज करूंगा, अपने लोकल एमएनए को फोन करूंगा कि यार सुबह जाके इसको रेजोल्यूशन मूव करो? नो। क्या मैं बाहर निकल के किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलूंगा कि यार इस पे आप कोई थोड़ा सा लॉबी करें एंड टॉक टू द सेनेटर्स? द आंसर इज नो। सो जो आपका सवाल है उसका भी फिर आंसर एंड में नो, कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह निशिस्तम वो क्या होता है उर्दू में, निशिस्तम बर्खास्तम और ये उठलाना। सो वी आर नॉट रिस्पांसिबल। हम इस पोजीशन ऑफ पावर में हैं। जो कल एक बड़ी स्टेटमेंट वज़ीर आज़म साहब की चल रही है कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, तो चूंकि सादा आदमी है उसको बात उस तरह नहीं करनी आती। ये बेसिकली एक कुरानिक वर्स भी है और एक बड़ी मशहूर एरिस्टोटल की भी बात कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे कैन नॉट बी न्यूट्रल, दे आर नॉट मेड टू बी न्यूट्रल। यू हैव टू टेक एन अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन, या अगर आप नेगेटिव हो जाए तो आप नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव एक्शन हम सारे आपस में 6 महीने बाद मिल लेंगे और अपनी अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे। अगर तो हमने कुछ किया होगा तो ट्रस्ट मी इधर बैठ के आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, वरना इसी तरह की कॉन्फ्रेंस और होगी, हो सकता है मॉडरेटर्स कोई और हो, मेहमान कोई और हो। सो आई एम सॉरी बट ये एक हार्श रियलिटी है व्हिच आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ इन सम वे। So I agree with him totally. There has to be some element of action involved. And frankly, अगर हम practically देखें, अगर आपने एक्टिविस्ट भी बनना है ना तो आपको कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आपको एक्चुअली जाके यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, वरना आपको कोई एक्टिविस्ट भी नहीं मानता, वरना आपको ट्रबल मेकर माना जाता है, ठीक है। वरना आपको you are quite obviously just there for the headlines, ठीक है। क्रेडिबिलिटी आपकी बनेगी तब जब आप लोग एक अपने ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, इस पॉलिसी व्हाटएवर कॉन्फ्रेंस से जो भी चीज आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर आप उसको हाई लेवल से ड्रिल डाउन करके लोअर लेवल अपने लेवल के ऊपर लेके आए, कैसे जी अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। You as an alums, I'm sure that you have organizations that are student led
that are connecting 5 or 6 major universities. Okay? If this really matters to you, then start a campaign to create awareness about the issue and start a campaign to give people an option to do something about it. Right? अब पाकिस्तान में इन चीजों का कोई मैटर नहीं करता कि राइट अ लेटर टू योर एमपीए, ये वो कॉल योर एमपीए, वो एमपीए भी ना वो लेटर देखेगा, वो सीधा कचरे के डब्बे में जाएगा. आप लोगों को एक्चुअली अब कुछ करना पड़ेगा. ठीक है. सो जो ये लेजिस्लेशन हैं आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. इस कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में एज अ स्टूडेंट या एज अ यंग पर्सन, बॉन्डेड लेबर कहाँ पाई जाती है, हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं. और बाकी बॉन्डेड लेबर का ही जो इशू है ना, ठीक है, क्योंकि अब ये एनवायरनमेंट की हम बात नहीं करें, हम बॉन्डेड लेबर की बात करें, वो आपके घरों में एग्जिस्ट करती है. ठीक है. या आपके जो करीबी स्लम्स हैं वहाँ पे लोग उसमें से गुजर रहे हैं. ठीक है. इससे पहले कि वो लाख रुपए का लोन किसी शार्क से लें, फिगर इट आउट. ठीक है. उनके लिए या वो बुनियादी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो अगर और कुछ नहीं तो पैसे दे दें. ठीक है. अगर आपके सर्वेंट क्वार्टर में कोई ऐसा बच्चा है जो रोज आपके घर में काम करे, फिगर दैट आउट. ठीक है. मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू स्कूल. देयर फंडामेंटल राइट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन encapsulates, but the government is not able to provide, you provide it. ठीक है. Have that pledge, come up with results from that pledge, and then market the results of that pledge. यार हमने ये काम किया, ये है credibility. ठीक है. कल को जब आप किसी बड़े आदमी के सामने जाएंगे, ठीक है, अपनी वो लेके, तो वो भी आपको अपने जैसा नहीं समझेगा कि यार ये भी बात करने आया, मैं भी सूट पहन के बात करने आया. ठीक है. वो समझेगा कि यार ये बंदा थोड़ा जेन्युइन है. सही है. And movements रातों रात नहीं बनेगी. By the time you graduate from LUMS, this problem will not be solved. I can guarantee you that right now. ठीक है. Maybe by the time your kids graduate from LUMS, we will still be here talking about the same problem. If you have worked sincerely until that time, maybe the magnitude will be less. ठीक है. Change is a journey. It's not an event. ठीक है. So be prepared. ठीक है. हिम्मत नहीं आनी, काम जरूर शुरू करो. इसके अंदर एक और मैं बात आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि we initially, क्योंकि जो think tank है, this is also a policy research think tank. So we initially we planned on tackling this problem through a policy perspective. So we highlighted a few loopholes that are present within the bonded labor policy. और उसको हम लोग counter इस तरह से करना चाहते हैं कि we want to publish policy papers critiquing those policies so that we could find out certain solutions for the problem. तो solutions सिर्फ ले लेंगे हम लोग तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि there are obviously certain individuals who have vested interest in propagating this problem of bonded labor. तो उसके लिए हम लोग सोचा था कि हम लोग एक two-tiered approach लेंगे, जिसमें एक advocacy होगी, एक lobbying होगा. Lobbying ये होगा कि we want to collaborate with certain other organizations and think tanks to think along the same line, maybe even with the Pakistan Bar Council या जो judiciary हमारी उसके साथ, ताकि हम लोग एक judicial level पे मामले को इसको raise कर सकें, इसके लिए आवाज. तो एक तो वो हमारे पास एक हमें पास नजर आ रहा है towards minimizing this problem. दूसरा ये है कि हम लोग advocacy में आ जाएं. We collaborate with the civil society, we collaborate with the ulama even who are against this problem, और फिर हम लोग एक public pressure build करें और फिर हम लोग जाके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करें. because there are obviously laws that are not being implemented, और पुलिस भी आ जाती है उसके अंदर, पुलिस मिले भी होती है सियासतदानों के साथ और नहीं करती. इस तरह के बहुत सारे हमें मसले होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है. तो आपके ख्याल में ये two-tiered approach हमारी ये किस हद तक आपके ख्याल में हमें आगे जाके कामयाबी दिला सकती है? बड़ी अच्छी बात है. रिसर्च से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती. लेकिन मैं आपको उसका 1 सेकेंड, क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे आज के पैनल में ये खुशी हो रही है कि हम तीनों लोग जरा प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा देख रहे हैं. और मैं ये पॉलिसी पेपर्स वगैरह कुछ आपने जो बातें की उसमें बड़े मुश्किल वर्ड्स हैं जिनका मुझे आदमी ज़्यादा तो शायद पता भी ना हो, बट हम चाहते हैं कि हैंड्स ऑन गवर्नमेंट के साथ काम कैसे करना है. आपको एक चीज़ तरीका मैं बता देता हूँ. ये जिस जजमेंट को मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है, इसकी कॉपी है, इसको पहले पढ़ें. इसमें बहुत सारी पॉलिसी डायरेक्शंस दी हुई हैं जिनमें से 95% नहीं फॉलो हो रही. सो आपकी सीधी सीधी इस अदालत की जजमेंट की कंटेम्प्ट करती है, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान तरीके से अदालत काम करवा सकती है. और मैं आपको उसकी एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ. मैं शादियों पे जाता था तो खाना वेस्ट होता था, मेरा दिल दुखता था. यार ये किस किस्म की हमारी कौम है कि एक बंदा खाना खा रहा है और 28 बंदों का खाना उसके प्लेट पर डाल रहा है. खवातीन, बच्चे, कोई पूछने वाला नहीं, और हम पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं. सो आई रेड एन आर्टिकल इन द डॉन, उसने ईमान बदियार ने लिखा हुआ था. उसको मैंने रिक्वेस्ट की, पिटिशनर बने, हमने हाई कोर्ट में चले गए. हाई कोर्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी को जस्टिस जवाद हसन ने डायरेक्ट करके लॉ बनवाया कि जो फूड वेस्टेज होगी उसके ऊपर ये पेनल कॉन्सिक्वेंसेस. अब हमें ये पता है कि अगर कोई खाना ज़ाया करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं. यहाँ से कहाँ आ गए. इसी तरह आप इस सिचुएशन में आज की जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो भी हम इसको करते हैं, इसकी सारी सब की बातें सम अप करके उसकी एंड में सजेशंस या जो भी आउटकम है वो निकालें. ये बातें 4-5 जो है, 4-5 से ज़्यादा बातें नहीं होती, बाकी कहानी होती है, वो निकालें.
और फिर उनको कहेंगे कि हमने इनको इस जजमेंट क्यू में इन्फोर्स करा। मैं ये वॉलंटियर करता हूँ कि आप अपने थिंक टैंक को जितने भी लोग हैं आप आए, आई एम विलिंग टू रिप्रेजेंट यू, वी विल टेक इट टू कोर्ट कि जी इस जजमेंट में जनाब आपने ये काम करा था, इसको इन्फोर्स करा दें, बिकॉज इसमें सारा लॉ डिस्कस करें, बजाय इसके कि हम ऑल टुगेदर दोबारा इस सारी बातें करने की आपको जरूरत ही नहीं है। लॉबिंग शॉपिंग ये अमेरिका में होती, पाकिस्तान में कौन सी लॉबिंग है? जिस एमएनए को पैसे देंगे आपकी बात सुन ले, सो नथिंग टू डू, जस्ट गेट अप, कम विद दिस रिपोर्ट कीजिए। हमने इसके ऊपर एक बड़ा सब्सटेंशियल काम किया है, हमने गवर्नमेंट को इसकी दरखास्त दी है, गवर्नमेंट इज यू नो टर्निंग देयर फेस टू इट, सो नाउ वी कम बिफोर दिस कोर्ट इन अ पिटिशन एंड ट्रस्ट मी बहुत एक्सपेडाइट चीज होगी। दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर, बट ऑफ कोर्स गॉड साहब इसमें बेहतर And this is definitely a question more that Barrister Neville should answer. Although मुझे एक चीज बताएं, ये जो हम इतने खुल के क्वेश्चन आंसर सेशन में बात कर रहे हैं, ये तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा ना? ये हो जाए, कोई बात नहीं सर, कह रहे हैं सर, किससे डर अगर आप कहते हैं तो नहीं 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 करेंगे, बल्कि जिनको सुनना चाहिए उनको सुनाएंगे। Yeah, वकील आपको फ्री है आपके पास, we're all covered, we're all covered. यू नो Yeah. डीसी हमारे साथ थे, साथ उन पे डाल देंगे। Any other questions there? आपका भी कोई था? क्वेश्चंस का मैं यही कहूँगा सर, हम डिस्कस भी कर रहे थे, साथ साथ क्वेश्चंस आ रहे थे और आप दोनों की आर्टिकुलेशन इतनी बेहतर थी कि साथ साथ आंसर होते जा रहे थे क्वेश्चन, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि यार ये बस आपने गुंजाइश ही नहीं छोड़े आप सवाल इसकी रिपोर्ट ऐसी बनानी है कि हम भी परेशान हो जाएंगे, यार बच्चों ने रिपोर्ट बनाई, नहीं सर ये ये ना हो कि आपका अगला इवेंट आज और इसकी रिपोर्ट ना बने। नहीं सर, ये जो आपने ये वाला काम बताया ना, इसे ये तो नंबर 2 है ना। नंबर 2 ये कि आज से आपने क्या खोया और क्या पाया, वो बात पहले लिखे कागज पे, हम तीनों को आप ईमेल करें, मुझे करें, गौर साहब को करें, हमजा को करें, हम आगे से कहें यार बच्चों ने काम किया है। नहीं नहीं क्योंकि अगर तो ये बात इधर ऐसी रह जाएगी, इसको फायदा, उस रिपोर्ट को उठा के आई विल टेक इट टू कोर्ट, आप लोगों को पिटिशनर्स बनाएंगे। मैंने तो बहुत सारे कनेड के बच्चों को, बहुत सारे लोगों को पिटिशनर्स बनाया, अच्छा यार वो आए काम करें, आप सबसे काम भी करवाएंगे, नहीं और जब आपकी आंखों के सामने चीज होती हुई नजर आएगी, सर बड़ी वो खूबसूरत सेटिस्फैक्शन feeling नहीं है। रहता वो जो होगी, बिल्कुल। कंसेप्शन की फीलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ये सर ये बस So we give you 15 days, make a good report and share it with us। चलो हम सर आपने ये बातें की हैं, पीडीएफ हो, हम भी को जरा व्हाट्सएप करें, हमें पता लगे कि सर am I on the right lines? Absolutely. ठीक है ना? Thank you so Thank much, you very guys. much। Thank you so much. Thank you.